Students, we are back again with a new chapter, and the name of the chapter is Amanda. So let's not waste our time. Let's begin the chapter. Video is an explainer on Robin Klein's brilliant poem Amanda. Okay, we have got a fantastic, perfectly structured module lined up to help you totally master that competency based learning and analysis. And yes, this is specially tailored to help you prepare for class 10 boards. Okay, we are not just gonna sit here memorize lines today. We are going to critically analyze tone and further deeper hidden meanings and unpack the clever literary devices that make this poem so incredibly relatable for literally anyone who has ever survived adolescence. Now this word adolescence is the most important word because question comes in board that what is the age of Amanda? So she is a teenager and we specify teenagers as एडोलेसेंस ग्रुप. ठीक है, तो एडोलेसेंट जो फेज है उसके ऊपर इस पोएम को लिखा गया है. एडोलेसेंस फेज में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं क्योंकि आप बच्चे से ग्रो हो रहे होते हो और मेच्योर हुए नहीं होते. तो बचपन और मेच्योरिटी के बीच का जो पीरियड है उसको एडोलेसेंस कहते हैं और वो सबसे कंफ्यूज स्टेट होता है क्योंकि कभी कभी लोग आपको ये बोलते कि अरे अभी तो आप छोटे हो, और वही सेम लोग जब आप कोई गलती कर दे तो आपको बोलेंगे अरे अभी आप छोटे नहीं आप बड़े हो गए हो. सो यू बिकम कंफ्यूज वेदर यू आर अ चाइल्ड और यू शुड बी कंसिडर्ड एज एन एडल्ट. सो दैट इज द कंफ्यूज स्टेट. So we have completed what is the meaning of adolescence. So let's move forward. Have been there feeling like every single thing you do is being micromanaged and controlled by an adult telling you what not to do, right? So उस एज में हम सब रहे हैं जहाँ पे हमें एक इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है एडल्ट्स के द्वारा कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे बिहेव करना है, वैसे नहीं करना है. सो दिस इमीडिएटली establishes the core theme of the poem, और यही तो थीम है पोएम का. Growing up comes with a ton of rules, है ना? And as we critically analyze this text, we are gonna see exactly how those non-stop instructions can make a young person feel entirely boxed in. जब आपको ऐसे instructions continuously मिलते हैं तो आप ऐसा फील करते हो कि आपकी फ्रीडम को रोक दिया गया है और आप एक बॉक्स में बंद हो. अगर कोई आपको कंटिन्यूसली, आपके पेरेंट्स आपकी फीलिंग्स को ना समझते हुए आपको सिर्फ डांट लगा रहे हैं, means you are not able to speak up for yourself, right? You are continuously being scolded. So just listen to this now. We immediately hear that repetitive, sharp, nagging voice of authority, right? कोई बहुत ही कड़े आवाज में आपको डांट लगा रहे कि अरे ऐसे मत बैठो. Okay, so it sets up the rigid, harsh reality of the poem right from those very first two lines. So पहले दो लाइन से ही हमें पोएम की rigidity दिख जाती है. The constant banging repetition of the name Amanda, बार बार अमांडा का नाम रिपीट होना, okay, paired with those exclamation marks, it creates this intense, almost overwhelming rhythm. ठीक है, it perfectly captures how a teenager actually hears these endless directives about postures and habits, loud, inescapable and honestly pretty exhausting things. So ये जो चीजें हैं जो कंटिन्यूसली आपको बोली जा रही है कि आप आपकी हैबिट्स ठीक नहीं है, आपका पोस्चर बैठने का सही नहीं है, और ये इस तरीके के डायलॉग्स हैं जो लाउड हैं एक इंसान के लिए और इनस्केपेबल है. आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते. अगर आप इग्नोर करोगे एडल्ट की बात तो ये नहीं सुनोगे, वहां से चले जाओगे, तो यू मस्ट बी कंसिडर्ड एज बदतमीज, राइट? सो दैट इज व्हाट इट इज टेलिंग. और वो एक एडोलेसेंट एज के लिए जहाँ पे बच्चे खुद कंफ्यूज स्टेट में है, एक क्या हो जाता है, एग्जॉस्टिंग हो जाता है. सुन सुन के इंसान इरिटेट होने लग जाता है. एंड हे पे अटेंशन टू द राइम स्कीम हियर. In this whole paragraph, you can also pay attention to the rhyme scheme. It's a rigid ABA pattern that literally traps Amanda's name at the end of the lines. ठीक है? Which totally mirrors that feeling of being trapped in real life. Here is our roadmap also. We are going into the roadmap now. Here is our roadmap for this video. 1. Adolescence and instruction. 2. Reality versus imagination. 3. Decoding poetic devices. 4. Analyzing tone and irony. And 5. Board exam critical thinking. Okay, kicking things off with section 1, adolescence and constant instructions. Now, look how the poet builds this dual reality structure. It's brilliant. On one side, we have the speaker,
मोस्ट लाइकली अ पेरेंट, ठीक है, एक स्पीकर है एक साइड में, हु इज टोटली ग्राउंडेड इन द मंडेन रियलिटी ऑफ द रेगुलर स्टैंजा. They are just barking out instructions about homework, cleaning shoes, eating chocolate. But then in alternate stanza, एक stanza के बाद वाले stanza में क्या है? We slip into Amanda's world. तो आपको ये याद रखना है कि एक stanza parents के instructions है और दूसरा stanza अमांडा की इमेजिनेशन है जो वो एक दूसरे वर्ल्ड में चली जाती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बिकॉज बोर्ड्स में आता है कि आप पैराग्राफ आइडेंटिफाई कीजिए कि विच stanza is about parents and which stanza is about Amanda being lost in her own world. ठीक है, तो सेकेंड स्टैंजा में वी मीन्स ऑल्टरनेट स्टैंजा में वी स्लिप्स इनटू अमांडाज वर्ल्ड. स्ट्रक्चरली रॉबिन क्लेन पुट्स अमांडाज थॉट्स कंप्लीटली इनसाइड पैरेंथेसिस. ठीक है, this create a closed off silent daydream world providing a huge visual emotional contrast between the loud nagging adult and the quiet protective inner sanctuary of the teenager. Moving right along to section 2 now. ओके, सो पिक्चर भी क्लियर है कि आपके फर्स्ट स्टैंजा या फिर ऑल्टरनेट स्टैंजा में क्या हो रहा है, एक जगह इंस्ट्रक्शंस हो रहा है और अमांडा बीइंग अ टीनेजर वो ऐसा लग रहा है कि शी इज हियरिंग टू द इंस्ट्रक्शन बट शी इज इन हर ओन ड्रीम्स इन हर ओन वर्ल्ड. ठीक है, इन द अदर स्टैंजा. अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन 2 दैट इज रियलिटी वर्सेस अमांडास इमेजिनेशन. रियलिटी और अमांडा की इमेजिनेशन वाली बातों को समझेंगे. लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड लैंग्वेज. ठीक है, इट सिंपली मीन्स रिलैक्स्ड. ये वर्ड आपके पोम में है. यूजिंग सिंपल लैंग्वेजेस फॉर लर्निंग इज की हियर व्हेन अनपैकिंग दीज मीनिंग्स. ठीक है, आपको मीनिंग्स जानना जरूरी है फॉर योर एग्जाम्स. When Amanda imagines herself drifting in an emerald sea. Now emerald, what is emerald? Gemstone which is of green color. तो ये जो सी जिसमें वो इमेजिन कर रही है अमांडा अपने आप को, उसका कलर क्या है? ग्रीन. सिर्फ पिक्चर्स अ लैंग्वेज एनवायरमेंट. अपने आप को अमांडा इमेजिन कर रही है एक सी के अंदर जो ग्रीन कलर का है और इन्वायरमेंट कैसा है उस सी का? रिलैक्स्ड. ओके, शी desperately wants to be a mermaid. यहाँ पे क्या इमेजिनेशन है? बच्चों की इमेजिनेशन ऐसी होती है. शी वॉन्ट्स टू बी अ मर्मेड. मर्मेड क्या है? हाफ फिश हाफ ह्यूमन बॉडी. Just drifting blissfully along utterly and completely free from the rigid postures and high stress rules demanded of her in real world. तो ये ऐसा इमेजिनेशन क्यों है? क्योंकि जिस वर्ल्ड में है, रियल वर्ल्ड में है, वो पूरा स्ट्रेस भरा है. उसमें कंप्लीटली इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, कमांड्स दिए जा रहे हैं. सो कंटिन्यूसली कोई बोल रहा है, उसको कुछ ना कुछ डांट पड़ता ही रहता है, जिसकी वजह से वो एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहती है बहुत दूर एक सी में जहां वो अकेले एक मर्मेड की तरह है, एक रिलैक्स एनवायरनमेंट में, कोई आवाज नहीं आ रही है इधर उधर से, उसके साथ कोई नहीं है. तो इमेजिन शी वांट टू बी अलोन. सच अ डेंजरस ड्रीम, राइट? एक छोटे एज में आप चाहते हो कि आप अकेले रहो. सो दैट इज अ डेंजरस ड्रीम फॉर अ. Similarly, she uses the word tranquil, which means calm, to describe the rare peaceful life she desires as Rapunzel. Isolated high up in a tower. Now Rapunzel कौन है? Rapunzel एक फेरी टेल स्टोरी बुक से आती है, एक प्रिंसेस जिसके लंबे बाल होते हैं. उसको किडनैप कर लिया जाता है एक विच के द्वारा और एक टावर में बंद कर दिया जाता है फॉर मेनी ईयर्स. ठीक है, जब तक वो अडल्ट नहीं हो जाती. तो जब वो एडल्ट हो जाती है तो उसके लंबे लंबे बाल होते हैं रपुंजल के. तो टावर से अगर वो बाल अपने नीचे करेगी, विंडो से, टावर के विंडो से, तो जहां वो किडनैप्ड है वहां पे एक प्रिंस आकर के उसके बाल के थ्रू चढ़ करके उसको वहां से बचा करके ले जा सकता है उस विलेन के हाथों से. बट नाउ दिस इज द कॉन्ट्रास्ट. क्या सच में अमांडा अब रपुंजल बन के अपने बालों को टावर के नीचे रखना चाहती है जहां पे कोई उसको बचा के ले जाए वापस उसी वर्ल्ड में जहां पे इंस्ट्रक्शंस, फुल ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, या वो चाहती कि कोई उसको किडनैप करके कैसे टावर में ले जाए जहां दूर दूर तक कोई ना हो? राइट, शी वांट्स टू बी अलोन और आइसोलेटेड हाई अप इन द टावर. ठीक है, यू सी द डार्क कॉन्ट्रास्ट बीइंग बिल्ट हियर. द अडल्ट वर्ल्ड इज क्या है? लाउड, अग्रेसिव, फिल्ड विथ कमांड्स एंड एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स.
सो अडल्ट की जो दुनिया है उसमें लॉट्स ऑफ कमांड्स हैं, लॉट्स ऑफ अग्रेसिव नेचर है, सो शी डजंट वांट ऑल दीज थिंग्स. मीनवाइल अमांडा's imaginary world is defined by soft words like languid and tranquil. तो अमांडा की जो दुनिया है उसमें कैसे कैसे वर्ड्स हमें दिख रहे हैं? लैंग्वेज, ट्रैंक्विल, जो एक काम रिलैक्सिंग वर्ड्स हैं, राइट. इट इज अ टोटल मास्टर क्लास इन यूजिंग सिंपल लैंग्वेजेस टू क्रिएट अ प्रोफाउंड heavy emotional contrast, right. So the crucial takeaway here is understanding the sheer depth of her desperation. ठीक है, बहुत desperate है, right, to run away from this adult world where there is lots of instructions and scolding going on. Think about this for a second. She would literally rather imagine herself as an orphaned child roaming the streets barefoot than sit in her own comfortable home listening to one more instruction. She explicitly says the silence is golden, the freedom is sweet. So you can see कि इतना ज़्यादा डेंजरस उसकी इमेजिनेशन है कि वो चाहती है कि वो ऑर्फन हो जाए, उसके आसपास कोई अडल्ट ना हो. बीइंग एन ऑर्फन इज सच अ डिफिकल्ट सिचुएशन. ठीक है, इस दुनिया में अगर एक बच्चा है जिसके माँ बाप नहीं हो तो वो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरता है, सरवाइव करना मुश्किल होता है. लेकिन यहाँ अमांडा वो भी इमेजिन कर ले रही है अकेले रहने के लिए. एंड शी वॉन्ट्स टू रोम अबाउट फ्रीली बेयरफुट, बिना चप्पलों के घूमना है उसको, क्योंकि चप्पल क्या दिखा रहे हैं? द फ्रीडम कर्टेल करना, रूल्स फॉलो करना, इसीलिए वो चाहती कि वो बेयरफुट ही चले. ठीक है. सो व्हाट हैपनिंग फॉर अ टीनेजर feeling this suffocated, the extreme heartbreaking scenario of being an orphan actually represents the escape of autonomy, where she can make her own literal and metaphorical pattern in the dust. ठीक है, तो वो चाहती है कि वो जो डस्ट में पैरों से चले उसमें वो कुछ पैटर्न्स भी बनाए. वी ऑल डू. रेत पे अगर हम बैठ जाते हैं तो हम उसमें कुछ ना कुछ डिजाइन्स बनाते हैं. तो वो इतना फ्रीडम चाहती है कि वो एक रेत भरे रोडवे पे चले बेयरफुट, बिना चप्पलों के, और उसमें फ्रीली कोई भी डिजाइन, कोई भी पैटर्न वो बना सके. ठीक है, लिटरली भी और मेटाफोरिकली भी ये बोला गया है. दैट ब्रिंग्स अस टू सेक्शन 3 नाउ. ओके, let's decode poetic devices now. Let's break down the main literary devices used to construct Amanda's contrasting imaginary world. First off, क्या है? We have got these incredibly powerful metaphors. पहला metaphor we will be discussing. Comparing herself to an orphan or a mermaid instantly shows us her deep, vivid desire for escape. अपने आप को ऑर्फिन और मरमेड से कंपेयर किया. ये ऑर्फन क्या है? छुटकारा पाना पेरेंट से. इवन मरमेड अकेले एक सी में. सो इट इज लाइक, ऑब्वियसली मरमेड ऐसी नहीं होती. अगर आप फेरी टेल में भी जाओ तो वो आपको जल्दी नहीं मिलती. उसके लिए आपको डीप वाटर्स में जाना पड़ता है जहाँ वो अकेले सुनसान डीप वाटर्स में है. सो ये मेटाफर ये दिखा रहा है कि शी इज यर्निंग फॉर स्केप. ठीक है, अकेले रहना चाहती है. सेकेंड, वी हैव अ ब्रिलियंट एल्यूजन. Now, illusion क्या है? By bringing in Rapunzel, a fairy tale character famous for being locked away in a tower, the poet immediately communicates Amanda's intense yearning for physical and emotional isolation far, far away from the nagging voices. So, जब वो Rapunzel बनना चाहती है तो वो क्या चाहती है? कि वो बहुत दूर 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 चले जाए, right? In nagging voices से. The abstract margin illustrates from the text are absolutely fascinating too. They aren't just here to look pretty. ये सारे जो मरमेड और रपेंसिल हैं सिर्फ ये प्रिटी दिखाने के लिए नहीं है. These fragmented, elongated facial profiles beautifully reflect the profound psychological disconnect and total lack of communication between the parent and the teenager. ये दिखा रहा है कि एक पेरेंट और टीनेजर के बीच में कितना कम्युनिकेशन गैप हो गया है, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे. वर्ल्ड चेंज हो रहा है, बच्चों को संभालने के तरीके चेंज हो रहे हैं, तो आपको अपने तरीके को बदलना होगा. हमेशा डांट डपट कर या फिर हमेशा अग्रेसिव होकर यू कैन नॉट डील विथ योर चिल्ड्रेन, राइट. सो दैट इज वाई कुछ ना पेरेंट बच्चों को समझ पा रहे ना बच्चे पेरेंट को समझ पा रहे. इसीलिए अमांडा चाहती है वो इतनी दूर हो जाए पेरेंट से.
They might be standing in exact same room. एक ही रूम में आप पेरेंट्स के साथ हो, but mentally their minds are inhabiting completely different universe. But दोनों के दिमाग में, पेरेंट और चाइल्ड दोनों के दिमाग में completely different universe चल रहा है. अब रह गई बात एल्यूजन की. मैंने बता तो दिया एल्यूजन रपेंजिल के साथ वो अपने आप को इमेजिन कर रही है, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्यूजन? is literary device, ठीक है, where a writer indirectly refers to a famous person. अपने आप को फेमस पर्सन से रेफर करने लग जाता है, या फिर इवेंट या प्लेस या स्टोरी और आइडिया विदाउट एक्सप्लेनिंग इट फुल्ली. ठीक है. Let's move on to next section, that is section 4, analyzing tone and irony. Now there is a boom here. Now what is a boom about? It is about after Amanda's beautiful peaceful daydream of being Rapunzel. That is जब अमांडा ये ड्रीम कर रही थी कि वो एक रपंजल है, पीसफुल दुनिया में है, तभी क्या होता है उसके साथ? The parent abruptly shatters the silence with this heavy accusation. क्या है accusation? Stop that sulking at once, Amanda. The tone just violently clashes back to a sharp critical reality. ठीक है. जब वो डे ड्रीम कर रही है तो पेरेंट्स उसको सोच रहे हैं कि वो बैड मूड में सल्क कर रही है क्योंकि वो चुपचाप बैठी हुई है, राइट? और पेरेंट्स जब उसको कुछ डांट रहे हैं एंड शी इज साइलेंट, शी इज नॉट रिएक्टिंग, तो उनको क्या लग रहा है कि शी इज इग्नोरिंग देम एंड शी इज बीइंग बदतमीज. ठीक है. The speaker claims Amanda is being moody and is actually worried that other people will think they are nagging her. और जो पेरेंट है उसको क्या लगता है कि वो मूडी बन रही है, यहाँ पे अपना मूड शो कर रही है, टैंट्रम शो कर रही है, और इससे जो दूसरे देखने वाले लोग हैं इनको क्या लगेगा, जो भी इसके आसपास के लोग हैं उनको क्या लगेगा कि इसके पेरेंट्स इसको हमेशा परेशान करते रहते हैं, नैग करते रहते हैं. सो दैट इज व्हाट द पेरेंट इज बिलीविंग आउट ऑफ अमांडा साइलेंस. ठीक है. Which brings us directly to a really important critical thinking question. When you read that stanza, last stanza, do you think Amanda is actually sulking and moody? क्या सच में वो moody थी? Is she just throwing a classic teenage tantrum? क्या सच में वो tantrum show कर रही थी? Or is there something completely different happening beneath the surface? या फिर कोई और ही बात था? When we infer based on the context of the whole poem, we really need to discuss the irony here. अब reality क्या है और हमें दिख क्या रहा है वो हमें डिस्कस करना है, यानी irony. It is a massive twist. Amanda isn't at all sulking, right? वो सल्क नहीं कर रही थी. आखिर अमांडा जब सल्क नहीं कर रही थी तो वो कर क्या रही थी? She is lost in peaceful, tranquil daydreams, right? Her silence isn't some rebellious attitude problem. कोई attitude problem नहीं था उसको. It's a vital psychological escape mechanism. जबकि उसने क्या किया था? अपने आप को साइकोलॉजिकली स्केप किया था उस प्रेजेंट सिचुएशन से जहां पे उसके पेरेंट्स उसको कंटिन्यूसली नैग कर रहे थे. The grand irony of the entire poem is that the speaker completely and utterly misinterprets her rich imaginative inner life as just a bad mood. जो स्पीकर है, जो पेरेंट है, वो इसको मिस इंटरप्रेट कर लेता है उसकी साइलेंस को. वो सोचता है कि अमांडा मूडी बन रही है, राइट? लेकिन अमांडा मूडी नहीं बन रही है, वो उस वर्ल्ड से अपने आप को स्केप कर रही है क्योंकि वो नहीं सुनना चाहती, अब वो नहीं सुन पा रही है, right? So she has created her own psychological world where she is dreaming of peacefulness, tranquility, right? So let's finally wrap up with section 5 now. Board exams critical thinking will be dealt in section 5. So let's test your competency with a common exam style question. Okay? There are two questions which I'm going to speak. First one, who is the speaker in stanza 2, 4 and 6, and are they actually paying any attention to the instructions being shouted in the other stanzas? So those दो क्वेश्चन हुए. तो इसके आंसर्स क्या होंगे? Your key inference here should be that the speaker inside the parenthesis is Amanda's own internal voice. So stanza 2, 4 and 6 में जो speaker है वो कौन है? अमांडा का खुद का internal voice है, वो अपनी दुनिया में है, right? And to the second question, the answer of the second part is absolutely 100% she is not listening. 100% she is not listening to the adult's voice. और ये हर टीनेजर करता है.
एवरी टीनेजर नोज द सर्वाइवल ट्रिक, ठीक है, जब भी कोई डांट वांट पड़ता है हर टीनेजर अपनी एक दुनिया बना लेता है जिसमें वो जाके शांति से कुछ और इमेजिन कर रहा होता है, वो बड़ों की बातों को सुन नहीं रहा होता है. So the physical brackets of the parenthesis act as a structural literary device, ठीक है, providing that she has totally turned the adult out. She has built an impenetrable wall between herself and reality. एक ऐसा वॉल बना लिया जिसको कोई पेनिट्रेट नहीं कर सकता, अपने ही अंदर बना लिया उसने, कि रियलिटी में तो वो अडल्ट के सामने चुपचाप खड़ी है लेकिन उसके दिमाग में वो कहीं और है, राइट, एक पीसफुल वर्ल्ड में है. सो नेक्स्ट अप लेट्स लुक एट द इल्यूजन थ्रू रपंजल अगेन. फिर से हम रपंजल की दुनिया में जाते हैं और फिर समझते हैं कि आखिर वो इल्यूजन है क्या. Why does Amanda specially choose this classic fairy tale figure as her ultimate escape? Rapunzel को ही क्यों चूज किया अमांडा ने? What exactly does Rapunzel have that Amanda is so desperate for? ऐसा क्या चीज है रपंजल के पास जो अमांडा को चाहिए? The genius of this lies in how she tweaks the myth. She takes this classic fairy tale and adds her own fierce, independent teenage twist. ठीक है? She wants a tower because life up there is tranquil and rare. Rapunzel का क्या चाहिए उसको? टावर, जहां पे रपंजल किडनैप्ड है, अकेली है, राइट, जहां पे एक सिचुएशन शांत ट्रैंक्विल है, कोई भी नहीं है वहां पे. बट क्रूशियली शी एक्सप्लिसिटली रिफ्यूजेस टू लेट हर हेयर डाउन, अनलाइक द ओरिजिनल Rapunzel who was just waiting around to be rescued by a prince. Amanda wants absolute unbroken isolation. और वो रपंजल की तरह अपने बालों को उस टावर के नीचे नहीं देना चाहती जिससे एक प्रिंस ऊपर आकर के उसको प्रोटेक्ट कर सके. वो कभी भी उस जगह को स्केप नहीं करना चाहती, राइट. दैट्स व्हाई शी इज वांटिंग टू बी अ रपंजल. She doesn't want anyone to enter her world, especially not someone who might bring more rules and instructions. Especially वो लोग को तो बिल्कुल ही नहीं पसंद करेगी वो अपने लाइफ में जो और भी रूल्स और इंस्ट्रक्शंस लेके आएंगे. So, synthesizing all of this critical analysis, we ask what's the ultimate moral theme and yearning hidden within these lines. आखिर है क्या इस पोएम का थीम, है क्या इस पोएम का मोरल, आखिर ये पोएम क्या यर्न कर रहा है. What does this behavior truly tells us about Amanda's state of mind? ठीक है, the poem clearly tells us that Amanda yearns for sweet freedom, golden silence. It points a deeply empathetic portrait of a girl who feels overwhelmingly controlled by the well-meaning but completely suffocating instructions of her elders. Most importantly, it shows us that she is incredibly resilient. ठीक है, she is using her rich, vivid imagination as a protective shield to survive the environment heavy pressure of adolescence. जब आप एडोलेसेंट होते हो आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, प्लस बहुत सारा प्रेशर होता है, स्टडी का प्रेशर, बहुत सारी सिचुएशन का प्रेशर आपके ऊपर होता है, जिससे बचने के लिए अमांडा ने एक शील्ड बनाई थी अपने लिए, राइट. क्या है वो शील्ड? अपने ही वर्ल्ड में, इमेजिनेटिव वर्ल्ड में ट्रैवल करना, राइट. दिस शोज कि वो एक रेजिलियंट इंसान है, ओके, हार नहीं मानने वाली लड़की है, ओके. सो दिस इज व्हाट इज Amanda's yearning. So as we wrap up the video, we go further. A final provocative thought to chew on. Okay, are these constant rigid instructions actually helping an adolescent like Amanda grow and learn? क्या हम जो ये डांट फटकार बच्चों को लगाते हैं क्या सच में उससे बच्चे कुछ सीखते हैं? Or are they simply forcing her to build walls and retreat completely into absolute silence? या सच में हम लोग उन लोगों को एक ऐसे दुनिया में भेज रहे हैं जहाँ की वो लोग अपनी ही एक वर्ल्ड बनाए और शांत हो जाए, चुप हो जाए, अपने ट्रू नेचर को दिखाए ना. दे बिकम वेरी साइलेंट, राइट. कीप दैट इन माइंड एज यू prep for your answers and remember to always keep analyzing deeply. बिना एनालाइज किए पोएम आपको क्वेश्चंस पूछना ही पूछना है हर स्टैंजा से, otherwise you are not able to sit for board exam,
right? We have to pay attention on the 50% of competency based question. So let's catch you on next video. Please don't forget to subscribe, because if you want more and more videos, I will be providing you. So that will be a motivation for me. Thank you.